Students, we'll start with relative velocity in one dimension. Relative velocity in one dimension. We'll start with relative velocity in one dimension. It's very important in this chapter as well as in many other chapters. Relative velocity concept will be always required. Okay. Students, relative term means we have to understand what is the meaning by, what is the term mean by relative. For example, I'm saying person A whose age is 21 years, correct? In a scalar term I'm explaining, then I will come to the vector terms. Let age of person B is 30 years, correct? If I want to say age of A with respect to B, I want to say age of A with respect to B. मतलब मुझे A का एज बोलना है किसके रेस्पेक्ट में, B की रेस्पेक्ट में. दैट मीन्स मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मतलब आई विल नॉट टेक द हेल्प ऑफ 21. आई विल राइट द टर्म इन टर्म्स ऑफ 30 years. एज ऑफ A with respect to B. Yes or no? दैट मीन्स अगर मैं B की रेस्पेक्ट में बोलूं तो A कितना साल बड़ा है, कितना साल छोटा है, 9 years. Yes or no? अगर B की एज बोलूं, इफ आई विल से द एज ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, मतलब मुझे B का एज बोलना है A की रिस्पेक्ट में. मतलब A का एज कितना है, 21 years, करेक्ट? बट 30 years के रेस्पेक्ट में अगर देखूं, इफ आई विल से इन टर्म्स ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू A में, अगर इफ आई विल से द एज ऑफ B, मुझे B की एज बोलना है A की रेस्पेक्ट में, करेक्ट? सो क्या है, B is 29 years elder. Yes or no? B बड़ा है 9 साल, तो दैट इज +9 एक आ रहा है, और यहाँ पर छोटा है 9 साल. मतलब छोटा बड़ा जो है ना, वो प्लस माइनस पे हम डील करेंगे. उसको जब वेक्टर में देखेंगे तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, अगर राइट साइड में नेगेटिव ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड को पॉजिटिव लेंगे. अगर लेफ्ट साइड को नेगेटिव ले रहे हैं, इफ आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन, देन इफ आई टेक दिस वन एज पॉजिटिव, देन इस डायरेक्शन क्या लूंगा, नेगेटिव. जो भी लूंगा मैं एक ही, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं इसको नेगेटिव नहीं ले सकता. इस साइड, अगर इस साइड को नेगेटिव लिया तो उसके अपोजिट साइड को क्या लूंगा मैं, पॉजिटिव. करेक्ट? गेटिंग अ नट. तो ये मोशन पे, काइनेमेटिक्स पे इसकी इंपॉर्टेंस जो है, हम अभी इसको उसके साथ डील करेंगे. ठीक है, जस्ट मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, जस्ट यू सी हियर, velocity of a moving body, right? Velocity of a moving body, velocity of a moving body, correct, with respect to the other moving body, with respect to the other moving body, velocity of a moving body with respect to the other moving body is called, it's called relative velocity. It's called relative velocity, correct? From definition point of view, relative matlab we are doing a comparison. Yes or no? Student, A and B are two objects moving uniformly with average velocity. Let VA and VB, correct? Let A is the object. Yes or no? Let A is moving with a velocity VA, correct? And let B is moving with a velocity VB. A and B are two objects, ठीक है? Moving with uniform average velocities VA and VB, है ना? और वो एक ही direction पे जा रहे हैं, one dimensionally, along x axis. So A and B are two objects, ठीक है? Velocity of object A is VA and velocity of B is VV. Yes or no? They are moving with in one dimension with velocity this much and this much, correct? Student, say let's they're moving along x-axis, okay? एक ही direction पे let they're moving along x-axis. x-axis पे दोनों जा रहे हैं इसी direction पे, है ना? Let position, right, say along x-axis having the position
स्टूडेंट्स, दैट इज एक्स ए पोजिशन ऑफ ए 0 मतलब टाइम 0 एंड एक्स बी ब्रैकेट में टाइम लिया मतलब एट टी इज इक्वल टू 0। मान के चलो उसका पोजीशन एक्स एक्सिस में एक्स ए था और इस पे एक्स बी था, करेक्ट। कुछ डिस्टेंस उसने एक्स से कवर किया, टी टाइम मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल जब हमने शुरू किए एक्स से एंड एक्स बी था, ठीक है। लेट कुछ टी टाइम के बाद उनकी जो डिस्प्लेसमेंट है, उनकी जो पोजीशन है, मान के चलो वो टी टाइम के बाद एक्स ए का पोजीशन आफ्टर टी टाइम एंड एक्स बी का पोजीशन आफ्टर टी टाइम, दिस इज द पोजीशन ऑफ ए after time t, this is the position of b after time t, correct? Yes or no? Our positions, right, are positions of objects, are positions of objects a and b at time t, at time t, correct? ये जीरो पे लिए हमने, पहला वाला हमने जीरो पे लिए, t is equal to 0 I took। सेकेंड पे हमने a का पोजीशन, b का पोजीशन, कुछ टाइम t में हमने लिए, है ना। सो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं अभी a to b में। लेट्स फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट a to b। write the displacement, write the displacement from object a, displacement from object a to b, displacement from object a to b is given by, right, is given by xba, correct? That is in time t, that is xb at t minus xa at t, है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है कि नहीं, गेटिंग है ना। और इसका जो xb का जो पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ xb कितना था इनिशियली, कितना था xb एट 0 माइनस xa एट 0 टाइम पे, करेक्ट, प्लस स्टूडेंट्स देखो ये डिस्प्लेसमेंट मैंने लिया xb एट t माइनस xa एट टाइम t, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। और उनका वेलोसिटी कितना था स्टूडेंट्स, va एंड vv। तो t अगर va वेलोसिटी पे जा रहा है t टाइम के बाद कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, velocity is equal to displacement by time ना student, velocity is equal to x by t, so x is equal to how much, velocity into time, yes or no, करेक्ट। तो मैंने इनिशियल जो पोजीशन था उनका लिख दिया एस बी माइनस एक्स से, इनिशियली जब टी इज इक्वल टू 0 पे वो कहां पर थे, एक्स बी नॉट माइनस एक्स ए नॉट, प्लस सेकेंड जो what is the velocity, vv minus va into time t, that is also this now, because change in velocity into time, getting or not, and this xb minus x0 is what, xba in time t, in time 0 plus vb minus va in time t, yes or no students, and it was let vb and vba is 0 मतलब उनका पोजीशन जो है वो 0 पे था, t is equal to 0 पे। तो अभी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ xba become how much, normal xba become how much, xba 0 plus vb minus va into t, so that means simple thing ये है velocity of a, ये पोजीशन वेक्टर पे भी हमने देखे थे जब स्केलर वेक्टर पढ़ रहे थे, velocity of a with respect to b, velocity of a with respect to b is vab, correct, that is nothing, that is nothing but va minus vb, करेक्ट। पता है ना हमें जब हम निकालते थे मैग्नीट्यूड, VAB का मैग्नीट्यूड निकालते थे, याद है, VAB इज इक्वल टू हाउ मच, VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर माइनस नेगेटिव है, सो 2VA VB cos थीटा का रूट अंडर, दैट इज द मैग्नीट्यूड, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ VAB, नथिंग मोर। तो स्टूडेंट इफ अगर ये है नॉर्मल हमारा, अगर ये है तो इफ आई विल से कि टू बॉडीज आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, राइट, two bodies are moving, two bodies are moving in a straight line
two bodies are moving in a straight line, correct, in same direction. है ना? Then student, velocity of A with respect to B, that is VAB का magnitude same direction मतलब theta 0, तो B minus B का whole square, yes or no? Cos 0 means 1, तो A square plus B square minus 2AB is what? A minus B का whole square, yes or no? So that will be velocity of A minus velocity of B. Condition apply क्या है? Theta is equal to 0 degree, yes or no? Student, if I will take velocity of A with respect to B, condition apply when they are moving in opposite direction. कैसे जा रहे हैं स्टूडेंट? Opposite direction. Opposite direction मतलब थीटा कितना है? 180. Theta is equal to 180, तो cos 180 is how much? -1. माइनस अब माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, yes or no? So opposite direction पे जब मूव करते हैं तो क्या होता है? मैं इसको और एक तरीका में भी मतलब मेथड पे भी बताऊंगा कि कैसे हो रहा है ये। तो VA प्लस VV, अंडरस्टूड? तब थीटा इज इक्वल 180 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? ऐड हो जाता है, यस और नो? जस्ट नोट इट। स्टूडेंट्स, लेट आई रोट रिलेटिव वेलोसिटी, जस्ट हमने लिखे कि रिलेटिव वेलोसिटी, ये एक मेथड था। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब VAB, करेक्ट? दैट मीन्स व्हाट? Relative velocity VAB of a particle, right, of a particle A with respect to B is defined as the velocity of A is defined as the velocity with which A appears to move. That is very important, समझाता हूं अभी। A appears to move if B is considered to be at rest. If B is considered to be at rest, B is considered to be at rest. That means students, ये बताने का ये मतलब है कि velocity of A है ना, velocity of A with respect to B, that means ये तो पता चल गया कि VA minus VB, no doubt. बट अगर दोनों एक प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहे हैं, मान के चलो मैंने यहाँ पर ले दिया A, करेक्ट, दिस इज मूविंग विथ VA एंड दिस इज B इज मूविंग विथ VB, है ना? अब तो निकाल दिए। बट अगर दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म भी मूव कर रहा है, मतलब दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, नहीं तो फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। ये एक मूविंग प्लेटफॉर्म है, वो कुछ वेलोसिटी में जा रहा है, ये भी और एक प्लेटफॉर्म में जा सकता है उसकी मूविंग प्लेटफॉर्म में। तो दैट मीन्स इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसको थोड़ा कहीं कहीं पे इस कॉन्सेप्ट की जरूरत होगा। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर रेस्ट है तो 0 डाल देंगे। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि भी इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, एक आदमी 10 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा था, मतलब किसकी रेस्पेक्ट में जा रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किसको लेते हैं? ग्राउंड को लेते हैं ना, ये सब नो। तो कहीं पे अगर कुछ नहीं दिया होता है तो हम ग्राउंड पे लेते हैं। अगर मूविंग प्लेटफॉर्म आ गया तो कीप इन माइंड कि ये कॉन्सेप्ट उसी टाइम पे हम ग्राउंड अगर नहीं है तो अगर और एक मूविंग प्लेटफॉर्म है हम उसको भी कंसीडर करेंगे उसी टाइम पे, ये सब नो। So velocity AG means what? Velocity of particle A with respect to ground, right? That is the velocity of particle A. That is the velocity of particle A with respect to ground. है ना? Understood? इस तरह अगर मैं velocity of B with respect to A बताऊं तो students, that is how much? Velocity of B with respect to ground minus velocity of A with respect to ground. क्योंकि 2 डायमेंशन पे हम रिवर वेलोसिटी रिवर बोट का प्रॉब्लम दिखने वाले हैं, वहां पर वेलोसिटी ऑफ रिवर भी होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट भी होगा। तो बोट का जो वेलोसिटी दिया रहेगा वो ग्राउंड की रेस्पेक्ट में दिया हुआ है या रिवर की वेलोसिटी के साथ मिला के दिया हुआ है? माइन्यूटली हम उसको क्वेश्चन को डील करना होगा, तो इसीलिए तब इसको बता रहा हूं मैं कि विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हमें लेना चाहिए।
मान के चलो मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूँ, सिंपल है, इसे शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन से। ये ए पार्टिकल है जो हमने लिए थे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए पे मूव कर रहा है। सेम डायरेक्शन पे वेलोसिटी ऑफ बी, बी पार्टिकल मूव कर रहा है। बोथ आर मूविंग इन व्हाट डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन, यस और नो? सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मींस हाउ मच? va माइनस vb, करेक्ट? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब क्या होगा? vb माइनस va। समझ पे आया दोनों चीज? सेम डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन पे मूव किया होगा, डायरेक्टली दिया रहेगा तो लेट दिस इज ए मूविंग इन दिस डायरेक्शन va, और ये b है जो कि इस तरफ मूव कर रहा है vb। हम वन डायमेंशन में ट्रीट कर रहे हैं, उसको फिर रिलेट करेंगे टू डायमेंशन के साथ मोशन इन प्लेन पढ़ने के बाद, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट्स ले लूं वेलोसिटी ऑफ ए, मैंने लिखा विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट मीन्स क्या लिखूंगा मैं? वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी लिखना चाहिए मुझे, है कि नहीं? बट अगर इस तरफ भी वेलोसिटी ऑफ बी पॉजिटिव है तो वेलोसिटी ऑफ बी तो उल्टा डायरेक्शन पे है ना, तो मैं इसको माइनस ऑफ माइनस वी बी लिखूंगा ना, वी ए माइनस वी बी, बट वी बी का वेलोसिटी तो प्लस नहीं है ना, दैट इज माइनस विथ रिस्पेक्ट टू ए, यस सर नो? यस सर। और दैट इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी हो गया। और मैं डायरेक्शन किसको लूंगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी के रिस्पेक्ट में, मतलब टुवर्ड्स बी, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट ये है। यहां पर मैंने क्या लिखा देखो थोड़ा, relative velocity VAB of a particle A with respect to B is defined as the velocity with which A appears to move. Velocity of A with respect to B means with which A appears to move if B is considered to be rest. समझ पे आ रहा है? मैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहा हूं, तो वेलोसिटी ऑफ ए अगर बी रेस्ट पे है तो क्या लगेगा? अगर बी को मैं रेस्ट पे लग दूं तो क्या लगेगा मुझे कि ए किस तरफ आ रहा है? टुवर्ड्स बी आ रहा है ना? यस सर। उस लाइन पे यस सर। साथ रिलेट कर पा रहे हो? 1 मिनट। यस सर। तो इस तरह अगर मैं VBA लिखूं तो नॉर्मल तो सर VBA दिमाग पे आया, मतलब VB माइनस BA, यहीं से बात तो खत्म नहीं हुआ। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है। अगर मैं VB को फिक्स करूं वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू B, तो माइनस ऑफ माइनस BA, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। दैट इज ऑल्सो हाउ मच? VB प्लस BA, बट डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा? टुवर्ड्स A। गेटिंग और नॉट? सो रिलेटिव वेलोसिटी में दोनों का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग हो जाए, तो VAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ VBA। That is very important. VAB is equal to minus of VBA. Just a minute. फ्रेंड्स, ये रिलेटिव वेलोसिटी डाल के हम बहुत सारे क्वेश्चंस इसे डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना? जैसे कि अगर मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को थोड़ा रिलेट करूं वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी के साथ, दो बॉडी अगर अलग अलग वेलोसिटी में जा रहे थे, इनिशियल सेपरेशन कुछ था, कितना टाइम लगेगा उनको फिर कैच करने के लिए, कितना डिस्टेंस मूव करेगा, मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड, यू विल सी इन द अपकमिंग असाइनमेंट्स, ओके? बट उसका थोड़ा मतलब सिनॉप्सिस बता रहा हूँ। जैसे कि हमें सिर्फ पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना? बट अगर मेरे पास दो पार्टिकल है, एक वी में जा रहा है और दूसरा पार्टिकल जो है वो वी में जा रहा है, डायरेक्शन तो अपोजिट हो सकता है, सेम हो सकता है, अलग बात, वन डायमेंशन की बात हो रहा है। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आफ्टर सम टाइम, अगर इनिशियल इतने वेलोसिटी में निकले थे, एक्सीलरेशन इसका उतना उस कुछ था, उसका भी अलग कुछ एक्सीलरेशन था, तो कुछ टाइम के बाद कितना वेलोसिटी होगा? व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोथ? तो डायरेक्टली मुझे तो अलग अलग नहीं निकालना है, तो मैं क्या कर दूं? इनिशियली जो वेलोसिटी था रिलेटिव वेलोसिटी यू ए बी निकाल सकता हूँ, यू ए माइनस यू बी करके, है ना? प्लस एक्सीलरेशन भी निकाल सकता हूँ, acceleration of a with respect to b, relative acceleration into t. I can write in this form or not, students? मान के चलो ये 10 मीटर पर सेकंड पे निकला था और ये 20 मीटर पर सेकंड पे निकला था, ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जा रहा है और ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 5 सेकंड के बाद वो पूछा होगा कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आफ्टर 5 सेकंड? तो क्या करेंगे? इसको इंडिविजुअली निकालना है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी करके, इसको निकालना है u प्लस एटी करके, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। गेटिंग नॉट? तो डायरेक्टली हम इस इक्वेशन में उसको फिट कर सकते हैं कि नहीं? यस सर, नो स्टूडेंट्स?
Yes, रिलेटिव वेलोसिटी पूछा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है, मतलब s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर वाला इक्वेशन भी यहाँ पर फिट हो सकता है, करेक्ट। दैट मींस डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव पोजीशन कितना होगा, कितनी दूरी पर होगा a विद रिस्पेक्ट टू b और b विद रिस्पेक्ट टू ऐसा पूछ सकता है वो। ए बी या बी ए पूछेगा तो उसके हिसाब से हम तो डील करेंगे। अभी मैं ए बी के साथ जनरलाइज इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो एस ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इंटू टी, करेक्ट, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इंटू टाइम, तो सेम है ना, रिलेटिव टाइम कुछ नहीं होता है, टाइम इज टाइम। वो 10 सेकंड के लिए मूव किया है, मतलब ये भी 10 सेकंड के लिए मूव किया होगा। तो इस इक्वेशन को भी हम फ्रेम कर सकते हैं उसी तरह, करेक्ट। ये सब नो, yes, sir. अगर उसने कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया रखा है, अगर इनिशियली बॉडी ने कुछ डिस्प्लेस किया था, मतलब जो क्वेश्चन से आता है ना कि एक पर्सन खड़ा था, याद आ रहा है किस तरह के क्वेश्चन आप किए होंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन पे मैंने दिया था, फिर यहाँ से बस ने शुरू कर दिया जर्नी, है कि नहीं, ये कितने में खुद को मूव करवाए ताकि ये कुछ एक 50 मीटर के पीछे था, है कि नहीं, ये इतने स्पीड में जा रहा है, बॉस भी इतने स्पीड में जा रहा है, तो इतने कितना टाइम लगेगा उसको कैच करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन आता है कि नहीं, देखना। तो उस पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अगर वो सेम टाइम पे स्टार्ट किए तो नो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, नो इनिशियल डिफरेंस बिटवीन देयर पोजीशंस, यस और नो। सो यू कैन राइट व्हाट हियर, एक्स ए बी 0, अगर होगा तो लिखेंगे, तो नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, प्लस ठीक उसी तरह यू ए बी इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए बी विथ रिस्पेक्ट टू बी इंटू टी स्क्वायर, कैन राइट और नॉट दिस वन, लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं कि नहीं, Yes, sir. ठीक उसी तरह v square minus u square is equal to 2as ना, we can write that Yes, sir. vab का स्क्वायर minus uab का स्क्वायर minus 2 into relative acceleration between a and b ab into displacement between a and b, अगर इस तरह के सारे क्वेश्चंस दिया होगा तो हम इसको भी इक्वेशन के साथ फिट कर सकते हैं, you will see in many of the questions and assignment this concept will be applied. Student, let's say थोड़ा डायरेक्शन के बारे में, स्टूडेंट लेट देयर आर 2 पैरेलल ट्रेल ट्रैक्स, ठीक है, मान के चलो नॉर्थ टू साउथ है, ये एक रेल ट्रैक है ना स्टूडेंट, नॉर्थ टू साउथ है ना, ये भी एक रेल ट्रैक है, नॉर्थ टू साउथ, विजिबल टू ऑल ना। Yes, sir. एक ट्रेन जा रहा है स्टूडेंट, ये एक ट्रेन ए है, ये भी एक ट्रेन बी है, ठीक है, लेट दिस इज ट्रेन ए, राइट, दिस इज ट्रेन ए एंड दिस इज ट्रेन बी, है ना। ट्रेन ए मूव स्टूडेंट्स लेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, किस तरफ जा रहा है ट्रेन ए, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, ठीक है, और वो कितने स्पीड में जा रहा है स्टूडेंट्स, 54 किलोमीटर पर आवर, कितने में जा रहा है, 54 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। और ये ट्रेन बी जो है वो किस तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स, साउथ टू नॉर्थ, किस तरफ जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ, कितने स्पीड में जा रहा है, मान के चलो 90 किलोमीटर पर आवर, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक मंकी है जो रन कर रहा है ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए, अगेंस्ट इट्स मोशन दिया हुआ है, अगेंस्ट इट्स मोशन मतलब क्या है, a monkey is running on the roof of the train A against its motion, उसकी मोशन की अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है, मतलब मंकी जो है ना वो, मान के चलो ये मंकी है अंदर, ठीक है, इस तरफ जा रहा है, वो कितने स्पीड में जा रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज मूविंग विथ 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अपोजिट में जा रहा है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मंकी इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है क्वेश्चन पे, करेक्ट, एंड दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ये भी लिख दिया उसने, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए, समझ पे आ रहा है स्टूडेंट्स, मतलब वेलोसिटी ऑफ मंकी इज 18 किलोमीटर पर आवर विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ठीक है, तो उसने पूछ लिया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मंकी, पहला क्वेश्चन उसने पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी, ये क्वेश्चन पूछा उसने, ठीक है,
नेक्स्ट में पूछा मतलब हमें मंकी का वेलोसिटी निकालना है, मतलब मंकी का वेलोसिटी मतलब आपका मन में तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना सर, किसकी रेस्पेक्ट में निकाले? ट्रेन ए की रेस्पेक्ट में निकाले तो वो तो दिया हुआ है, ट्रेन बी की रेस्पेक्ट में निकाले, या फिर कोई और एक ऑब्जर्वर होगा जो ग्राउंड में खड़ा होगा, या फिर वो भी मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो उसने दो ऑप्शन दिया रखा उसके लिए, राइट। एज ऑब्जर्व बाय एन ऑब्जर्वर, राइट, एज ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर, velocity of monkey is observed by an observer on ground, नंबर 1 पे पूछ लिया उसने। सेकंड बीस पे उसने पूछा is observed by an observer, right, is observed by an observer moving in train B, moving in train B। Just write the question, students. स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले डायरेक्शन को क्लैरिफाई कर देते हैं, करेक्ट। लेट्स क्लैरिफाई द डायरेक्शन फर्स्ट। मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन को चलो पॉजिटिव मान के चलते हैं ऊपर की तरफ, और साउथ की डायरेक्शन को क्या लेके चलते हैं, नेगेटिव, है ना। सो साइन साइन कन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो टेकिंग नॉर्थ डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए स्टूडेंट्स कितना है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। यस सर नो? सो अगर मीटर पर सेकंड में उसको कन्वर्ट कर दे तो कितना हो जाएगा 54 इंटू 5/18, दैट इज हाउ मच 15 मीटर पर सेकंड। और नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो इसीलिए हम इसको पॉजिटिव लेके लिए हैं, करेक्ट। यस सर नो? और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी स्टूडेंट्स वो किस तरफ है, साउथ की तरफ है ना। यस सर नो? सर ट्रेन ये नॉर्थ Yes, से sir. साउथ आ रहा है। और ट्रेन ए इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए इज 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। सर नॉर्थ से साउथ नहीं आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, मैं उल्टा ले लिया ना, ठीक है, नो Yes. प्रॉब्लम। स्टूडेंट लेट्स सी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया, नीचे की तरफ नेगेटिव, तो ये यहाँ पर देखो आप, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए इज टुवर्ड साउथ, जो कि कितने में जा रहा है स्टूडेंट्स 54 किलोमीटर पर आवर में। तो साउथ को हम नेगेटिव लिए हैं तो यू टेक हियर नेगेटिव 25, यस सर नो, है ना। थोड़ा चेंज करो इस पे, हमने नेगेटिव लिए हैं, ट्रेन ए इज मूविंग -15 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। यस सर नो? और वेलोसिटी ऑफ बी स्टूडेंट किस तरफ जा रहा है 90 में ऊपर की तरफ जा रहा है, हम नॉर्थ ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया है, करेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ बी विल बी हाउ मच स्टूडेंट्स +90 किलोमीटर पर आवर, ये सब नो, दैट इज 90 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर नो स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट दिया हुआ है द वेलोसिटी ऑफ मंकी with respect to train A, the velocity of monkey with respect to train A is how much students 18 kilometer per hour, yes or no? Velocity of monkey है ना स्टूडेंट्स with respect to train A कितना है स्टूडेंट्स 18 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। Yes, sir. और 18 किलोमीटर पर आवर मतलब वो किस तरफ मूव कर रहा है, अपोजिट टू ट्रेन है, मतलब किस तरफ मूव कर रहा है, साउथ पे मूव कर रहा है ना, मतलब नॉर्थ पे मूव कर रहा है ना, ट्रेन मंकी इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, क्वेश्चन में दिया हुआ था। Yes. तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, राइट, द वेलोसिटी ऑफ मंकी, राइट, द वेलोसिटी ऑफ मंकी with respect to train A, with respect to train A is how much 8 किलोमीटर पर आवर। और किस तरफ है टुवर्ड्स, किस तरफ है North. टुवर्ड्स नॉर्थ, राइट, टुवर्ड्स नॉर्थ, जस्ट राइट टुवर्ड्स नॉर्थ, ये सब। तो हम इस तरह लिख सकते हैं दैट इज वेलोसिटी ऑफ मंकी, राइट, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ए दैट इज हाउ मच, कितना लेंगे हम, देखो यहाँ पर नॉर्थ को हम पॉजिटिव लिए है ना,
तो +18 लिख सकते हैं, ये सर नो लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. सो दैट इज हाउ मच 18 इंटू 5/18 कितना हो गया वो 5 मीटर पर सेकेंड ना? गेटिंग और नॉट? समझ पे आ रहा है? Yes, sir. तीनों का डायरेक्शन हमें पहले डिसाइड कर दिया हमने, है ना? सेकंड पे अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है फर्स्ट बिट में? एज ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, मतलब ऑब्जर्वर रेस्ट पे है ना? पहला बिट में पूछा है द वेलोसिटी ऑफ मंकी इज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, ये तो पूछा है ना? है कि नहीं स्टूडेंट्स? Yes, sir. मंकी लिखा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ मंकी with respect to a is equal to how much? Velocity of monkey minus velocity of train a ना? Yes or no? Yes or no students? Yes, sir. तो हमें अभी क्या निकालना है? मुझे सिर्फ वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालना है, क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना? जो बताया था मैंने, ग्राउंड इज रेस्ट. Yes or no? So velocity of monkey will be how much? Velocity of monkey with respect to train a plus velocity of train a, यही तो हो जाएगा ना? Yes or no? Yes or no students? ये है वेलोसिटी Yes. ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए. मुझे वेलोसिटी ऑफ मंकी को रखना है, तो ए उस साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना? ये सब नो. चलो, तो अभी वेलोसिटी ऑफ मंकी हमने क्या निकाला है विद रिस्पेक्ट टू ए? 5 मीटर पर सेकंड निकालना, तो यहाँ पर मैं 5 लिख सकता हूँ, करेक्ट? लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes. और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए हमने क्या निकाले? -15 है ना? तो 5 प्लस ऑफ -15 तो क्या आएगा? -10 मीटर पर सेकेंड. समझ पे आ रहा है कि नहीं? समझ पे आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. -10 मीटर पर सेकेंड, मतलब माइनस प्लस हम क्या लिए हैं? नीचे की तरफ हम लिए हैं क्या? माइनस. ऊपर की तरफ हम क्या लिए हैं? पॉजिटिव लिए हैं ना? देखो यहाँ पर हमने साउथ को नेगेटिव और नॉर्थ को पॉजिटिव लिए कि नहीं? तो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है उसको अभी लगेगा मंकी कितने स्पीड में भाग रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड पे. बट किस तरफ मूव कर रहा है? माइनस आ रहा है, मतलब उसको क्या लगेगा? मंकी किस तरफ जा रहा है? लेकिन साउथ की तरफ. गेटिंग और नॉट? सो लिखो इसको. फॉर एन ऑब्जर्वर, फॉर एन ऑब्जर्वर standing on ground, for an observer standing on ground, the monkey will appear. The monkey will appear to move with. The monkey will appear to move with 10 मीटर पर सेकेंड. डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव आया है. क्या होगा डायरेक्शन? दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. क्या होगा डायरेक्शन? 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ, करेक्ट? Yes, sir. समझ पे आया ये पहला वाला बिट? गॉट और नॉट? Yes, sir. नेक्स्ट सेकेंड बिट पे क्या पूछा है उसने? देखो यहाँ पर as observed by an observer moving in train B. ठीक है, ट्रेन बी पे जो ऑब्जर्वर जा रहा है उसका मतलब ये है कि द वेलोसिटी ऑफ मंकी, सेकेंड बिट में जो पूछा है, सेकेंड बिट में द वेलोसिटी ऑफ मंकी इज ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग इन ट्रेन बी. स्टूडेंट उसका मतलब क्या है? अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मंकी, मंकी with respect to train B is equal to how much? That is nothing but velocity of monkey minus velocity of train B ना? Yes or no? और velocity of monkey, Yes. वेलोसिटी ऑफ मंकी हमने क्या लिए हैं? अभी अभी निकाले हमने. क्या लिए हमने? +5 मीटर पर सेकेंड ना? है कि नहीं? बट वो वेलोसिटी ऑफ मंकी +5 हमेशा स्टूडेंट्स डाल देते हैं, बट वो स्टूडेंट्स वो किसके रेस्पेक्ट में है वो? Training. हाँ, तो लेकिन हमें वेलोसिटी ऑफ मंकी एक्चुअल में क्या है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? 10 meter per second. 10 और वो साइन डालेंगे तो क्या आएगा? -10 आएगा ना? Yes. तो वेलोसिटी ऑफ मंकी इज हाउ मच? -10 मीटर पर सेकेंड. लिख सकते हैं -10, करेक्ट? है कि नहीं? यस सर, नो स्टूडेंट्स?
Yes. Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 25 मीटर पर सेकंड निकाला ना हमने, and that is -10 minus VB is 25, correct? Yes or no? So that is how much? -35 मीटर पर सेकंड। समझ पे आ रहा है कि नहीं मैथमेटिकली? Yes, sir. तो मतलब मंकी का वेलोसिटी जो है वो कितना हो जाएगा, -35 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और किस तरफ हो जाएगा वो? नेगेटिव मतलब क्या South. लगेगा कि साउथ की तरफ जा रहा है वो। दिस इज साउथ, नेगेटिव ऊपर की तरफ, प्लस दैट इज नॉर्थ। यस और नो? सो यू कैन राइट hence the velocity of monkey, right? Hence the velocity of monkey will be 35 meter per second towards north, sorry towards south। नेगेटिव आया ना स्टूडेंट्स? यस सर नो? Yes. towards south, sir no? So for the observer moving in train B को क्या लगेगा कि मंकी किस तरफ जा रहा है? साउथ की तरफ जा रहा है। कितने वेलोसिटी में जा रहा है? 35 मीटर पर सेकेंड।